پیٹ کی بڑی سے بڑی بیماری کا علاج قدرتی۔ جو لوگ پیٹ کی بیماریوں سے پریشان ہیں تو وہ خوش ہو جائیں، ان کا لیے 10 ایسے علاج لے کر آئی ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، پیٹ کی بیماریاں۔ لیکن خوشخبری ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حکمت اسلامی میں ایسے آزمودہ نسخے موجود ہیں جو پیٹ کی بڑی سے بڑی بیماری کو بھی جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو آئیے گا ایک ایک کر حوالے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے علاج ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فوراً فالو کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا۔ تو دیکھیے گا ایک ایک کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ پہلے نمبر پر پیٹ کی بیماری کا سب سے بڑا علاج ہے کلونجی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلونجی میں موت کے سوا، سمجھ رہے ہیں، موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 5688 پر۔ کلونجی جو ہے آنتوں کی سوجش، گیس، قبض، السر، ان جیسی بیماریوں کو جو ہے ختم کرتی ہے، اور جو بیکٹیریا ہوتا ہے معدے کا، السر اور بدہضمی تک کو ختم کر دیتی ہے۔ پیارے اسلامی ناظرین اکرام، اگر آپ روزانہ استعمال اس کو کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے گا اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ کلونجی کو روزانہ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ جو ہے آپ کو آدھا چمچ کلونجی لے لینی ہے، یعنی گرم ہلکا گنگنا پانی کر لیں اور اپنی ہتھیلی پر آدھا چمچ کلونجی رکھیں، اور پھر اس کو منہ میں پھانکیں اور پانی پی لیں۔ تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں صبح شام۔ اب دیکھیے گا صبح کو کریں تو بہت اچھا ہے خالی پیٹ۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے پیٹ کی بیماری کا علاج ہے شہد۔ قرآن میں علانیہ شفا ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جیسے سورۃ نحل آیت نمبر 69 پر یہ آیت موجود ہے، اور اس کے اندر اس کا معنی یہ ہے، شہد معدے کو مضبوط کرتا ہے، گیس کی تیزابیت، جلن، السر اور آنتوں کی خرابی ختم کرتا ہے۔ جو آنتوں میں گرمی ہوتی ہے، السر ہوتا ہے، اور جو تیزابیت بنتی ہے نا، وہ انشاءاللہ تبارک تعالی وہ ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا شہد کو کس طرح استعمال کریں گے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی لے لیں، گنگنا پانی لیں، اور ایک چمچ خالص شہد ضرور ڈال لیں اس پانی کے اندر، اور پھر اس کو خالی پیٹ نہار منہ صبح کو آپ لے لیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پیٹ کی بیماریاں چند دنوں کے اندر بہت ہی آپ کو آرام ملے گا، چند دنوں کے اندر آرام ملنا شروع ہو جائے گا، اور بہت حد تک فائدہ حاصل ہوگا۔ اب دیکھیے گا تیسرے نمبر پر آتا ہے سنت، یعنی سنت کا طاقتور علاج، وہ ہے انجیر۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے، انجیر کھاؤ، یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ جیسے کسی بھائی کو بواسیر ہے اور جوڑوں میں درد رہتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے، جیسے کہ یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ انجیر معدے کو نرم کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے، اور آنتوں سے فاسد مادہ نکالتا ہے، پیٹ کی تمام بیماریاں قدرتی طور پر دور کر دیتا ہے۔ اور آپ کو استعمال کس طرح کرنا ہے، دیکھیے گا آپ کو استعمال اس طرح کرنا ہے میرے پیارے اسلامی عزیزوں، بھائیوں، دوستوں۔ رات کو 2 انجیر پانی میں بھگو دیں،
1 गिलास पानी ले लें, उसमें 2 अंजीर अच्छे से धोएं, बोस करें और उसके बाद उस पानी में डाल दें और सुबह को आप जो है पानी को भी पी लें और उन अंजीरों को भी खा लें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। चौथे नंबर पर का इलाज है, चौथे नंबर पर आता है जैतून का तेल। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, जैतून मुबारक दरख्त है और ये जन्नत का दरख्त है। और सूरत नूर आयत नंबर 35 पर यह आयत मौजूद है और इसका जिक्र है। हदीस मुबारका में भी आता है, जैतून का तेल खाओ और उसे बदन पर भी लगाओ, ये मुबारक दरख्त है। जैसे कि सुनैन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 1851 पर। जैतून का तेल पेट की गर्मी, अल्सर, कब्ज और आंतों की सूजस यानी जो सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको खत्म करता है। और वो जो कब्ज की मरीज हैं, 2-2, 3-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता, बहन हो या भाई, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिएगा इसको इस्तेमाल किस तरह करें वो भी मैं आपको साथ के साथ बतलाती चली जा रही हूँ। रात को सोने से पहले 1 चम्मच जैतून का तेल आपको इस्तेमाल करना है। आपको आपको ऐसे भी गर्म गुनगुने पानी में डालकर भी पी लें तब भी अच्छा है, और आप जो है उसकी मालिश करें और अपनी नाभि में डालें तो बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिएगा 5वें नंबर पर आता है सबसे ताकतवर नबी का नुस्खा, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नुस्खा तलबीना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती है, तलबीना बीमारी के दिल को राहत देता है और गम व फिक्र को दूर करता है। जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है 5679 पर, 5689 पर। तलबीना मैदा और आंतों की बेहतरीन इलाज है। अब देखिएगा इसके क्या क्या फायदे हैं। पहले नंबर पर अल्सर खत्म होता है, दूसरे नंबर पर गैस नहीं होती, तीसरे नंबर पर कब्ज नहीं होती, चौथे नंबर पर तेजाबियत जो बनती है मैदे के अंदर वो नहीं होती, और 5वें नंबर पर जलन नहीं होती है, जो जलन सी होती है सीने के अंदर वो नहीं होगी, और 6ठे नंबर पर आंतों की सूजन खत्म होती है, और खालीपन और जो परेशानी होती है, जो खालीपन टेंशन होती है वो भी नहीं होती। तो अब देखिएगा तलबीना को इस्तेमाल किस तरह करना है। 1 कप दूध, 2 चम्मच जौ का आटा, 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको अच्छे से पका लें और फिर उसको इस्तेमाल करें, खाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। अब देखिएगा 6ठे नंबर पर आता है खजूर। जो खजूर होती है उसके कितने बेनिफिट हैं, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर बेहतरीन गिज़ा है। जैसे कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। खजूर मैदा मजबूत करती है, भूख बढ़ाती है, खून को ताकत देती है, तमाम निजाम जो हाजमे का निजाम होता है उसको बेहतर करती है। इस्तेमाल का तरीका ये है, रोजाना 3 से 5 खजूरें इस्तेमाल किया करें, या तो सुबह में निहार मुंह ले लें या फिर रात को खाना खाने के 1-2 घंटे बाद खा लें। तो इससे बहुत ही हद तक फायदा होता है। 7वें नंबर पर आता है इस्लाम यानी इस्लामी का आजमुदा इलाज सौंफ। जो मेरे इस्लामी भाई बहन पेट से परेशान रहते हैं ना, जरा सा कुछ खा लेते हैं पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर गैस बनना शुरू हो जाती है, बदहजमी, एसिडिटी, तेजाबियत, तो उनके लिए ये जो मैं इलाज बतला रही हूँ, अगर इनमें से 1-2 भी इस्तेमाल में लाते हैं ना, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप मुझे भर भर के दुआएं देंगे, क्योंकि ये है ही इतने अच्छे आजमुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हैं ये। अब देखिएगा सौंफ के कितने बेनिफिट हैं। बदन के हजारों हकीमों ने सौंफ को आंतों का सबसे बेहतरीन इलाज लिखा है। अब इसके फायदे आइएगा हम पहले एक एक कर जान लेते हैं। पेट का दर्द इससे खत्म होता है। दूसरे नंबर पर गैस की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है हर भाई बहन को, तो गैस भी नहीं बनेगा।
तीसरे नंबर पर तेजाबियत नहीं बनेगी। चौथे नंबर पर भारीपन जो होता है पेट के अंदर, थोड़ा सा भी खा लिया भारी भारी लगना शुरू हो जाता है, तो वो भारी भारी नहीं लगेगा। और पांचवें नंबर पर बदहजमी नहीं होगी। छठे नंबर पर मैदे की जलन बिल्कुल नहीं होगी। और सातवें नंबर पर अल्सर जैसी बीमारियां खत्म होंगी, जख्म नहीं होंगे। अब देखिएगा इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। पहले 1 घंटा पहले भिगो कर रख दें सौंफ के अंदर पानी, और फिर उसको उबाल कर और फिर छान कर पी लें। और अगर आप ऐसा नहीं पीना चाहते तो 1 घंटा पहले सौंफ 1 गिलास पानी में गुनगुने में रख दें, और फिर उसको चबा चबा कर ऐसे खा लें और पानी को पी लें। तो इससे भी अल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही फायदा देगा। तो देखिएगा 8वें नंबर पर आता है पेट की बीमारियों का बादशाह है जीरा। जीरा मैदे की गर्मी, अल्सर, गैस और भारीपन को जड़ से खत्म कर देता है। हकीम यूनानी में जीरे को मैदे का दोस्त और दवा कहा गया है। कानून तिब्बी इब्नी सीना में कानून इब्ने सीना में कहा गया है कि ये जो जीरा होता है मैदे का दोस्त है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। 1 गिलास गर्म पानी ले लें, आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें, और हो सके तो शहद जो होता है उसको मिला लें, और फिर उसको सिप सिप कर कर पी लें। और अगर आप बगैर शहद के पीना चाहते हैं तो ऐसे भी पी सकते हैं, तो और भी फायदा हासिल होगा आपको। दोनों तरह से पी सकते हैं, दोनों तरह से फायदा हासिल होगा। अब देखिएगा 9वें नंबर पर आता है कुरान मजीद से सिफाई अमल। अगर पेट में मुस्तकिल दर्द, जलन या अल्सर हो तो ये अमल पढ़ें। सूरह फातिहा जो होती है, सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है, जैसे कि सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। रोजाना खाने पर दम कर कर खाया करें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला चंद दिनों के अंदर जो मुस्तकिल दर्द रह रहा है पेट के अंदर, ये जलन हो रही है या फिर अल्सर है, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत ही आपको फायदा हासिल होगा, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। खाने पर दम कर लें और पानी पर दम कर कर पी लिया करें। अब आखिरी में 10वें नंबर पर आता है पानी पीने का इस्लामी तरीका क्या है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और अक्सर ये गलती करने के बाद इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो देखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 सांस में ना पियो, 3 सांस में पानी पियो। जैसे कि सुनैन इब्ने माजा के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है 3418 पर। और देखिएगा लोग ऐसा करते हैं कि गलत तरीके से पानी पीने शुरू कर देते हैं। अब देखिए उससे क्या नुकसान होते हैं। गैस बनता है, तेजाबियत बनती है, और तीसरे नंबर पर पेट फूलने लगता है, बड़ा हो जाता है। चौथे नंबर पर आंतों की कमजोरी होना शुरू होती है। और 5वें नंबर पर इस्लामी तरीका देखिएगा ये है, बैठकर पानी पिए, 3 सांस में पानी पिए, और पहले नंबर पर बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिए, तो इससे आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। आखिर में एक ताकतवर जामाई नुस्खा अगर चाहें तो ये नुस्खा जिंदगी बदल देगा। नुस्खा ये है, कलौंजी 1 चम्मच, 1/4 चम्मच, शहद 1 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, नीम गर्म पानी 1 गिलास रोजाना सुबह खाली पेट पी लेना, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला पेट की जैसी भी बीमारी होगी सब खत्म हो जाएंगी। तो आपको करना है इस तरह से है जैसे मैंने आपको बतलाया है। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज, सब खैर। प्यारे इस्लामी नाजरीन इकराम, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि हर मुसलमान भाई इससे फैजियाब हो सके, फायदा हासिल कर सके, अपने तक बिल्कुल न रखें।
اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ، سب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔